संस्कार भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकं प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं पादयति सङ्गीतकं वसुधैवभावनपोषकं पादयति सङ्गीतकं वसुधैवभावनपोषकं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं ललितरसमयलास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला ललितरसमयलास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला ललितजीवननाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथाप्रमोदं ललितजीवननाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथाप्रमोदं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं चतुष्षष्टिकलान्वितं परमेष्टिना परिवर्तितं चतुष्षष्टिकलान्वितं परमेष्टिना परिवर्तितं विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं जीवनव्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं जीवनव्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं नामयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं नामयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं बोलो भारत माता की ಸಾಕಲ ಯಾ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೈಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಗೈಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆತಿಥೇಯರು ಈ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯಾ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಿ ಇವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರಾನಾಥ ಕೊಠಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಇವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಇವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರಾನಾಥ ಕೊಟ್ಟಾರಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರಾನಾಥ ಕೊಠಾರಿಯವರನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಿ ಇವರು. ಮಾನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಇವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತು. ಹರಿ ಓಂ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು. 2010 ಹಾಗಿದ್ದರೆ 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ 1981ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಿಂತ 30 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ, ಸುಮಾರು 1954ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅನೇಕ RSSನ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಿಂತಾನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಧರ್ ವಾಕಣ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಹರಿಭಾವ್ ಅವರು, ಯೋಗೀಂದ್ರಜಿ ಬಾಬಾ, ಈ ಥರ ಅನೇಕರು ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 99 ವರ್ಷದ ಯೋಗೀಂದ್ರಜಿಯವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇಡೀ ದೇಶ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು. ಅಂಥ ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 81ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಕಲಾವಿದರು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಈ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರು ಅದೇ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1998ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಸಮಿತಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. SL ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾಂತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಿತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಪುತ್ತೂರು ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಭಾರತೇ ನವಜೀವನಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಲು, 11 ಸಾಲುಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆ. ಅದು ಆರಂಭದದ್ದು ಪಲ್ಲವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ 4-5 ಚರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ, 2-2 ಸಾಲಿದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಭೂ ಅಲಂಕರಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಧಾದಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಂಗೀತ ವಿಧಾದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದ 77 ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು, ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತರು ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ BKS ವರ್ಮಾ, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯವರು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನವ್ಯಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಮಿತಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯಾಯಿಯವರು. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.
ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಇವರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜಲಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮೀಲಿತಮ್ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ರಸಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಲೇಖಾ ಅವರೇ, ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಪದ್ಮಾಚಾರ್ಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸವರ್ತಿ ಬಂಧುಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿಯ ಎಲ್ಲ अभिमानी बंधुगणे, स्वर निनाद संस्था का नायक और यहाँ का बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए श्रीमान सुरेश शुक्ला जी और कलाकार बंधुओं ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹತೋಬಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು बहुत ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2010ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಗೋಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅಚ್ಯುತ್ ನಾಯಕರವರ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರ, ಅತ್ಯಂತ ಮೈನರಿರೇಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದದ್ದರಿಂದ ಮುಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. शुक्ला जी, आपको और एक बार पुत्तूर को आत्मीय स्वागत बोलता हूँ मैं आपको. आज का ये दिन महतोबार मालिंगेश्वर महादेव जी का, भगवान का जो एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में एक इतिहास बन के रह जाएगा. लोगों के मन में ये जो भावना है, देशभक्ति का भावना है, आज का जो अवसर है वो आप सबको मालूम है. हम सब जुड़े हुए हैं. एक या दो हिजाब होगा या तो हलाल होगा. ये इंसिडेंट्स के वजह से सभी लोगों में एक बार
ये भावना उठा हुआ है। आज का ये जो मेला आप देख रहे हैं, ये मेले में भी हमारा बंधु लोग ही भाग ले रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है, भारत एक होना है, भारत में भारतीय रहना है, उसमें और कोई रहने का अवसर नहीं है। जो भी उसका मतभेद रहेगा, लेकिन भारत का पुत्र होके, भारत माता का पुत्र होके वो भारतीय कहना चाहिए, और कोई जात मज़हब से उसका जो पहचान है वो होना नहीं चाहिए। ये बोलते हुए ये आज का जो जागो हिंदुस्तानी कार्यक्रम है, ये और एक बार हमारा देशभक्ति गूंज उठे और हम सबको जगाए, और एक बार और आने का आपको निमंत्रण पुत्तूर से आना चाहिए, ऐसा आपका कार्यक्रम हो, ये मेरा आशय है। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ, ಮಹಾದೇವನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಐತಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾವ್ ಅವರು ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಐತಪ್ಪಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮುಂದೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರವರ್ತಿತ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೂರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧತಾ ಮೇ ಏಕತಾ, ಅನೇಕತಾ ಮೇ ಐಕ್ಯತಾ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕತೆಯ ತಳಹದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇತ್ತು ಆಗೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಮರೆವು,
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ವೈರುಧ್ಯಗಳಾಗ್ತದೋ ಆಗ ದೇಶ ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತದೆ, ಪತನದ ಹಾದಿಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗೃತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ, ಸಂತೃಪ್ತ, ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದವರಿಗೆ, ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಈ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪರವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹರಿಯು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಭಜನೆ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕೋಲಾಟ, ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ನಿರಂತರತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಗಮನಿಸಿ. ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಂದೋಲನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪದ್ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕಲೆ ಉಳಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲೂಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು 20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ 20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ 20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ನಮ್ಮದು. ಈ ವರ್ಷ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಪಟ್ಲವರ ಮೂಲಕ. ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶುಕ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. आज कार्यक्रम देने वाले स्वर निधि ट्रूप के निर्देशक प्रोफेसर सुरेश शुक्ला मंच पर आने का निवेदन करता हूँ. श्री मालिंगेश्वर देवालय के व्यवस्थापन समिति के मुख्यस्थ श्री केशव प्रसाद मुड़िया श्री शुक्ला को गौरवार्पण करने का अनुरोध करता हूँ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಆಚಾರ್ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯಾ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ನಯನಾ ವೀರಯ್ಯ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಲೇಖಾ ಇವರು ಶ್ರೀಪತಿಯವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಲಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮುಳಿಯಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
सबकी मन की आराध्य देवता इतिहास प्रसिद्ध श्री महातोबा मालिंगेश्वर देव को हमारा साष्टांग प्रणाम। जात्रा महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक स्वागत। हर मन का उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम इस देश का पुल है जिसका नाम हिंदुस्तान है। संस्कार भारती दक्षिण कन्नड़ जिला, संस्कार भारती पुत्तूर और विवेकानंद विद्यावर्धक संघ का अंग संस्था रेडियो पांचजन्य 90.8 FM पुत्तूर इनके सहयोग से प्रस्तुत करते हैं जागो हिंदुस्तानी, हिंदी देशभक्त गीतों की एक यादगार संगीत कार्यक्रम। विशेष प्रकाश प्रभाव और उन्नत ध्वनि प्रभाव के साथ 2.5 घंटे का अनूठ संगीत कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के स्वर्णित टीम प्रस्तुत करने वाले हैं दिल को छू लेने वाले देशभक्ति गीतों का भंडार। यह हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदार हम सबको दी है। आपके सामने जागो हिंदुस्तान टीम का परिचय करते हैं। स्वागत करते हैं टीम के निर्माता, प्रोड्यूसर, कीबोर्ड में साथ दे रहे हैं श्री सुनील सुतार। इस ट्रूप का निर्देशक प्रोफेसर सुरेश शुक्ला को आदरणीय स्वागत। सब मंच पर आके एक पुल के स्वागत स्वीकार करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। कॉन्सर्ट का नरेटर श्री भरत भूषण को स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के स्टार गायकों श्री रंजित बुगाले, राजवर्धन, विजय वालीवाड़, वैदेही जादव, सीमा सोनार। स्वागत है आप सबको। ऑक्टोपैड में रघुनंदन साथ दे रहे हैं, तबला में ध्यानेश कोहली, ढोलक में स्वानंद जादव, रमेश मालवे रिदम में साथ दे रहे हैं, दत्त चरण असिस्टेंट के रूप में साथ दे रहे हैं, ऋषिकेश पवार साउंड लाइट में साथ दे रहे हैं और गिटार में गणेश भोसले। सभी को पुत्तूर की तरफ से आदरणीय स्वागत। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के मन मन का पर्व बने। आइए गायन टीम को सुने और 75 यानी 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। धन्यवाद। हेलो, मैं खुद प्रोफेसर सुरेश शुक्ला, जागो हिंदुस्तानी का डायरेक्टर, और हमारे जो प्रोड्यूसर है खुद इंजीनियर है सुनील सुतार जी यहाँ कीबोर्ड पर, और हमारी सब टीम आप सभी का स्वागत करते हैं। 1-2 मिनट मैं लेना चाहता हूँ। महालिंगेश्वर की कृपा से 32 बरस ये संस्था काम कर रही है, और ये स्वर्णिनाथ संस्था ऐसी है, सिर्फ प्रोग्राम नहीं करती, कलाकारों को ही बनाते हैं। आदरणीय सुनील सुतार जो खुद इंजीनियर है, 1 नहीं 2 नहीं, इस स्वर्णिनाथ संस्था ने 40 कलाकार अभी तक बनाए हैं और भिन्न फील्ड में वो काम कर रहे हैं। और 1 मिनट में इसलिए लेना चाहता हूँ, जागो हिंदुस्तानी पूरे भारतवर्ष में हमने कार्यक्रम किए, अमेरिका में कार्यक्रम किए। यहाँ के जो मास्टर ऑफ सेरेमनी दोनों थे, उन्होंने जागो हिंदुस्तानी का परिचय अच्छी तरह से कर दिया। लेकिन एक सौभाग्य की बात है, 15 बरस पहले फर्स्ट टाइम इन दक्षिण कन्नड़ा संस्कार भारती ने ही हमें इधर लाया, और उसके जिम्मेदार है चंद्रशेखर शेट्टी जी, खुद कलाकार है। मुझे खुद यहाँ से 2 व्हीलर से ले गए थे मोहन अलवा के पास, इधर भी प्रोग्राम बनाए, और एक केशव मूल्या जी के केशव प्रसाद जी ने 4-5 कार्यक्रम किए, और भी हमें बुलाते हैं देवस्थान के लिए। इस वक्त रूपलेखा, दीपक जी, सभी का नाम नहीं मैं लेता, बहुत कष्ट से उन्होंने
यहाँ हम कलाकारों की सेवा की है। लास्ट सेंटेंस में इतना ही कहता हूँ कि संस्कार भारती चाहे चंद्रशेखर जी हो, अन्य हो, और स्वर निनाद, हम यहाँ से आगे एक साथ काम करेंगे। ये 75th डायमंड जुबली अमृत महोत्सव, और अमृत महोत्सव के नाते आज महालिंगेश्वर की कृपा से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। मैं आप सभी को, सभी नागरिकों को एक आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ, शांत ध्यान से 2 घंटा जागो हिंदुस्तानी सुनना यानी भारत की सेवा करना है, महालिंगेश्वर की सेवा करने से ऐसा है। क्योंकि हम प्लेन माइंड से, ट्रांसपेरेंट, ये देश के लिए काम करते हैं। इसलिए संस्कार भारती के हम ऋणी हैं हमेशा, और आगे नॉन स्टॉप 2 घंटा देश के प्रति हम और महालिंगेश्वर के प्रति जागो हिंदुस्तानी। नमस्ते बहन और भाइयों, नमस्ते। आज की सुरीले सफ़र में उपस्थित आप सभी का सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, स्वर निनाद एक ऐसी संस्था है जिसने पिछले 32 सालों में पूरे हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सभी बड़े शहरों में और अमेरिका के 22 बड़े शहरों में मिलकर 3200 से भी ज़्यादा बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए हैं। और यही स्वर निनाद आज आपके सामने पेश करने आई है सुरीले हिंदी गीतों का एक अनोखा संस्कार, जागो हिंदुस्तानी। 15 अगस्त 1947 दिल्ली के लाल किले पर से अंग्रेजों का यूनियन फ्लैग, जो पिछले 150 सालों से वहां लहरा रहा था, उसे नीचे उतारा गया और उसकी जगह ले ली हमारे तिरंगे ने। हम आजाद हुए। आज 74 साल 7 महीने और 26 दिन पूरे हो चुके हैं हमें आजाद हुए। आइए इसी बहाने हम अपनी यादों को ताज़ा करें। आज़ादी के पहले ये जो 150 सालों की गुलामी हमने कैसे बिताई, क्या क्या दुख सहे, क्या क्या कोशिशें की, कितनी मुसीबतों का सामना किया, कैसी मिली है हमें ये आज़ादी। और आज जबकि आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो जो सपने हमने आज़ादी के पहले देखे थे, क्या वह हकीकत में उतरे हैं या सपने ही रह गए? आइए इसी के बारे में कुछ बातें करें गीतों के माध्यम से। सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे कि ये जो कोशिश हम करने जा रहे हैं, पिछले 200 सालों के इतिहास को याद करने की इस कोशिश में भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना
विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी भीगे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हरित मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। आज़ादी के लिए की गई लड़ाई जो करीबन 90 साल तक चलती रही, और आज के हालात, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने निर्माण किया है इस जागो हिंदुस्तानी को। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी संस्कृति की ओर। हमारा हिंदुस्तान कितना महान है ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कह रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक किताब का प्रकाशन हुआ है जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी दुनिया का इतिहास, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उनमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा हर बात पर आप जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। उसमें लिखा है, हमारा हिंदुस्तान ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले 10,000 सालों से किसी भी पराये मुल्क पर खुद हमला नहीं किया है। हमारे ही आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तब जाके दुनिया में गणित विषय बना। दुनिया को सबसे पहली दवा हम ही ने दी, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। खेलों का बादशाह शतरंज, यह हमारी ही देन है। दुनिया को जब लंगोटी पहनना भी मालूम नहीं था, तब हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यापीठ थे, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अलग अलग 60 विषयों पर अध्ययन करते थे। कहने की बात यह है कि हम अगर हजारों साल पीछे नजर डालेंगे तो हमारा हिंदुस्तान ये विश्व में सबसे बड़ा देश था, सबसे महान देश था। यहाँ के ऋषि मुनि ओमकार का जप करते थे।
यहाँ प्रार्थना की जाती थी इस विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख और शांति के लिए। हम पर संस्कार ही कुछ ऐसे हुए हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, सत्य ही पवित्र है, शिव है, और शिव से सुंदर कुछ भी नहीं। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव का वृंदावन। दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं यह थी प्रार्थना जो हमारे मन को शक्ति देती है। सिर्फ यह नहीं, सभी प्रार्थनाएं हमें शक्ति देती है। एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रेम की शक्ति की, पूजा की शक्ति की। आज से 130 साल पहले अमेरिका के एक शहर शिकागो में दुनिया के सभी धर्मों की एक परिषद बुलाई गई थी, जिसमें हिंदुओं का नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। वहां सभी को बोलने का मौका मिला, लेकिन सबकी नजरें रुकी थी स्वामी जी पर। सबके कान ये सुनने के लिए बेचैन थे कि स्वामी जी क्या बात करेंगे। जब अपनी बात कहने के लिए स्वामी जी खड़े हो गए तो चारों ओर शांति ही शांति थी। स्वामी जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। माय सिस्टर्स एंड माय ब्रदर्स। तो सुनने वालों को रहा नहीं गया। उन्होंने इतनी तालियां बजाई कि तालियों की गूंज की वजह से स्वामी जी को 2 मिनट के लिए शांत रहना पड़ा। और वो तालियां इसलिए बजाई गई थी कि जिंदगी में पहली बार किसी पराये ने उन्हें अपनी बहन कहा था, अपना भाई कहा था। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं। यही तो एक शस्त्र है हमारे पास, जिसे हम सामने वाले को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। प्रेम का यह मंत्र हमें मिला है हमारी संस्कृति से। यह प्रीत हमारी रीत है। तालियों का साथ चाहिए आपका। हाँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे जान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम
अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग यहाँ, कितने पावन हैं लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे हमने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा लगता है ये गीत नहीं, हमारी संस्कृति की कोई किताब हो। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि सच और झूठ में 6 इंच का फासला होता है, सिर्फ 6 इंच का। आंखों से देखा हुआ सच और कानों से सुना हुआ झूठ। ठीक वैसे ही हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति में एक अक्षर का फासला है, सिर्फ एक अक्षर का। विदेशी संस्कृति जो है वह द्राक्ष संस्कृति है। द्राक्ष ने समझ गए आप, अंगूर। विदेशी संस्कृति जो है वह द्राक्ष संस्कृति है, और हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वह रुद्राक्ष संस्कृति है। एक में विलास और भोग है तो दूसरे में बैराग और त्याग। हमारी संस्कृति ना सिर्फ हमें सिखाती है कि माता पिता और गुरुजनों को भगवान का दर्जा दो, बल्कि हमें सिखाती है कि इस पूरी दुनिया को अपना घर समझो, इसमें रहने वाले हर एक को अपना भाई समझो, अपनी बहन समझो। और यही संस्कार हुए हैं हम पर। यहाँ के फूलों, पौधों, पेड़ों पर, हवाओं पर, बादलों पर, झरनों पर, नदियों पर, समंदरों पर, हर एक चीज पर यही संस्कार हुए हैं। तो जिस देश की रीत ही प्रीत है, फिर वहाँ का माहौल कैसे होगा? आइए हमारे इस देश के माहौल के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं गीतों के माध्यम से। पेश है कुछ झलकियां। प्यारी है इसकी
से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं।
कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहत की आवाज, सुन के रहत की आवाज, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे। होते ही मस्त पहाड़ों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, हो मेरे देश की धरती। बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तालियां हो जाएंगी। बल्ले बल्ले ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती हीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, बनती है पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां बालों में। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, ये तो ढोल और ताशे बजते हैं।
इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा लगता है इसे कहने में, कितना अच्छा लगता है इसे सुनने में, लेकिन ये हमें अच्छा लगता है, हिंदुस्तानियों को अच्छा लगता है, विदेशियों को ये अच्छा नहीं लगता। और इसी बात को लेकर एक बार एक विदेशी ने, इस गीत के लेखक जो है कवि इकबाल जी, उनसे सवाल पूछा था कि ये जो आपने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किस बलबूते पर आपने इसे लिखा है, किस आधार पर आपने इसे लिखा है? तो कवि इकबाल जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, उस विदेशी को गौर से सुनेगा। उन्होंने कहा, अरे यही तो एक फर्क है दुनिया के तमाम देशों में और हिंदुस्तान में, कि दुनिया के सभी देशों के पास भूगोल है। भूगोल यानी समझ गए आप, जमीन का टुकड़ा। दुनिया के सभी देशों के पास भूगोल है, लेकिन हमारे पास, हिंदुस्तान के पास भूगोल के साथ साथ इतिहास भी है। और ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि हमारे पास इतिहास भी है, वो इतिहास जिसे हम भूलते जा रहे हैं। 150 सालों के गुलामी के बाद मिली हुई यह आजादी हमें उपहार के तौर पे नहीं मिली है और ना ही भीख में मिली है। 6 लाख वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके मिली है हमें यह आजादी। जागो हिंदुस्तानी में हमारी यही कोशिश है, वो जो इतिहास हम भूलते जा रहे हैं उस इतिहास को हम फिर से याद करें। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी ने एक सेतु बांधा था लंका जाने के लिए। उस वक्त एक छोटी सी गिलेरी ने भी उनकी सहायता की थी, अपना अपना योगदान दिया था। हमारी इस आज़ादी की जंग में भी ऐसी बहुत सारी गिलेरियाँ थी, जिनमें से एक की कहानी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा। नंदुरबार नाम के गांव में शिरीष कुमार नाम का एक छोटा सा बच्चा था। 9 साल की उम्र होगी, 4ठी कक्षा में पढ़ता था। देशभक्ति क्या होती है शायद उसे पता ही नहीं, लेकिन देशभक्ति के संस्कार उसके खून में जरूर हुए थे, क्योंकि उसके माता पिता दोनों क्रांतिवीर थे। एक दिन एक मोर्चा तय हुआ था, जिसके नेता थे इसके माता पिता दोनों, लेकिन किसी वजह से ये दोनों उस वक्त गांव में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। तो सवाल ये पैदा हो गया कि आज नेता कौन बनेगा। तो ये छोटा सा बच्चा, 9 साल का बच्चा शिरीष कुमार, ये उस मोर्चे का नेता बना और वो मोर्चा निकला। हमेशा की तरह एक मोड़ पर अंग्रेज सिपाहियों ने उस मोर्चे को रोका और उस मोर्चे के सबसे आगे जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, उनकी सीने पे बंदूकें ताने ये अंग्रेज सिपाही कहने लगे, पीछे हटिए नहीं तो गोलियां चलेंगी। ये छोटा सा बच्चा शिरीष कुमार सबसे आगे था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं पर अपनी कमीज फाड़ी और बोला, अरे नामर्दो, औरतों पे क्या गोलियां चलाते हो? अगर है हिम्मत तो मुझ पर गोली चला करके दिखाओ। लेकिन उसकी यह बात पूरी भी नहीं हो पाई कि वहां से गोली निकली और इसके सीने को चीर कर निकल गई। छोटा सा बच्चा खून से लथपथ बेजान होकर धरती पर गिरा। गुल्ली डंडा खेलने की उम्र, लेकिन बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए। न जाने ऐसे कितने शिरीष कुमारों के सीने पे खड़ी है आजादी की हमारी यह इमारत। हमारे वतन पर शहीद होने वाले छोटे छोटे बच्चे हो या हट्टे कट्टे जवान, जब भी वो घायल होकर धरती पर गिरे हैं, उनके आत्मा से एक ही आरजू निकली है, हे भारत माँ तेरी मिट्टी में मिल जावा। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके
हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरे ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, नस नस में जो तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के कौन कहे। इतनी सी है दिल के आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल के आरज़ू। हंसती रही तेरी आँख खड़ी भरना ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला जलता है। फिर मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल के आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल के आरज़ू। केसरी अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा था हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को, लेकिन हमारा मन आज़ाद था और हर एक दिल में एक चिंगारी सुलग रही थी। करीबन 25,000 हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग मैदान में, और उन 25,000 बेकसूरों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। लगातार 11 मिनट तक गोलियां चलती रही। 1,000 लोग गोलियां झेलकर और 1,000 लोग भाग दौड़ में, ऐसे 2,000 लोग मारे गए। और जब उस डायर को पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया, तो ये दरिंदा क्या बोला मालूम है? उसने कहा मेरे पास सिर्फ 1,500 गोलियां थी, इसलिए मैं उतने ही लोगों को मार सका। जो शहीद हुए उनका तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, और जो घायल हुए ना ही उन्हें कुछ दवा पानी मिला। दूसरे दिन पाठशाला जाने वाला एक छोटा सा बच्चा सबकी आंखों से बचता हुआ उस जालियांवाला बाग मैदान में जा पहुंचा, और वहां जाकर देखता है तो क्या, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, जमीन खून से रंगी हुई थी। इस बच्चे की आंखें फटी की फटी रह गई, इसकी सांस जोर जोर से चलने लगी, नथनियां फूल गई, सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगा। बिना सोचे समझे उसका हाथ उसके स्कूल बैग में गया, वहां से स्याही की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और स्याही जो थी जमीन पर गिरा दी। ये बच्चा जान चुका था
कि स्याही अपना काम कर चुकी है, अब जरूरत खून की है। कलम अपना काम कर चुकी है, अब जरूरत शस्त्र की है। ऐसे ही एक बच्चा था, भगत सिंह। क्रांति यह मेरा धर्म है, जिससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, यह थे उनके विचार। और इनकलाब जिंदाबाद, यह था उनका नारा। और इस काम में उनके सहयोगी थे सुखदेव और राजगुरु। क्या आपको मालूम है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जब एक साथ फांसी दी गई तो उनकी उम्र थी करीबन 24 साल। और जब उन्हें फांसी देने का समय आया, जब उनके चेहरे पे काला नकाब डाल दिया गया और जब उनके गले में फांसी का फंदा डालने का वक्त आया, तो जो जल्लाद उनके गले में फांसी का फंदा डाल रहा था, उस जल्लाद के पूरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज तक फांसी का फंदा गले में डालते वक्त उसने लोगों को चीखते, चिल्लाते, रोते, गिड़गिड़ाते ऐसे ही देखा था। लेकिन ये तीनों उन नकाबों के अंदर से ये गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई। बहती की तेरी खिसा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, रंग
34 करोड़ हिंदुस्तानियों को सिर्फ 12,000 अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा था। दुनिया हंस रही थी हम पर, क्योंकि ये दुनिया जानती थी कि सारे हिंदुस्तानी एक साथ थूके तो भी अंग्रेज बह जाएंगे, लेकिन हमें इकट्ठा करेगा कौन? हमें एकता सिखाएगा कौन? क्या आप इस बात पे विश्वास रखेंगे कि 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिर्फ 300 अंग्रेजों ने बिना लड़ाई किए 40 मिनटों में गिरफ्तार किया था? लेकिन यह बात सच है, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी उस वक्त हमारी हिंदुस्तानी फौज में यानी बंगाल की फौज में 18,000 हिंदुस्तानी सिपाही थे और अंग्रेजों की फौज में सिर्फ 300। लेकिन हमारी हिंदुस्तानी फौज का जो सेनापति था मीर जाफर, ये अंग्रेजों से मिला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे वादा किया था कि वे उसे बंगाल का नवाब बनाएंगे। और इसी लालच में आकर इस मीर जाफर ने ऐन मौके पे हथियार डालने का आदेश दे दिया और हमारे 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिर्फ 300 अंग्रेजों ने बिना लड़ाई किए 40 मिनटों में गिरफ्तार किया और कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में उन्हें बंदी बना करके रखा। वहां उन्हें 10 दिन भूखा और प्यासा रखा गया और 11वें दिन इन भूखे प्यासे अधमरे निहत्ते 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों की हत्या की गई। और उसके दूसरे दिन अपनी जीत की खुशी में अंग्रेजों ने जुलूस निकाला कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक। उस वक्त बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जो कि आज कोलकाता है। तो ये 300 अंग्रेजों का जुलूस जा रहा था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक, जिसे देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी खड़े थे। उस वक्त अंग्रेजी फौज का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसके दिल में ख्याल आया। उसने अपनी डायरी में लिख कर रखा है, आप लोग गौर से सुनिएगा इस बात को। उसने लिखा है, हमारे 300 अंग्रेजों का जुलूस जा रहा था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक, जिसे देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी खड़े थे। अगर उस वक्त हमारा जुलूस देखने वाले हर एक हिंदुस्तानी ने एक छोटा सा पत्थर उठा के हम पे फेंका होता तो हिंदुस्तान तो उसी दिन आजाद हो गया होता। लेकिन हमें इकट्ठा करेगा कौन? हमें एकता सिखाएगा कौन? फिर ये जिम्मेदारी ली हमारे क्रांतिकारकों ने। मंगल पांडे, जिन्होंने हमें बगावत करनी सिखाई, महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया, चाफेकर भाइयों ने हमें बदला लेना सिखाया, तो सावरकर जी ने हमें देश प्रेम सिखाया। जब सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, तब जाके अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 आखिर हम आजाद हुए। 150 सालों का ग्रहण छूट गया। 3 पुष्टियों से जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे, वह क्षण आया था। बहुत सालों के बाद आंखों में खुशी के आंसू आए, चेहरे पे मुस्कान आई और कुछ पल के लिए दिल ने चाहा बीते हुए गमों को भुलाकर नाचे गाए। बैलों के गले में घुंघरू बजने लगे, सुबह की शहनाइयां गूंजने लगी और तन मन भुला के सारा संसार झूम उठा। दुख भरे दिन बीते रे भैया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया।
अमृत छाए प्रेम की घागर लाए बादल बेकल मारा जिया प्रेम की घागर लाए बादल बेकल मारा जिया दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे होय होय दुख भरे दिन बीते रे भैया ओ मधुर मन बगाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए आज तो जी भर नाच ले पागल कर न जाने क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल कर न जाने क्या होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे होय होय दुख भरे दिन बीते रे भैया ये बात सच है कि हमें आज़ादी मिली है सत्याग्रह और अहिंसा की वजह से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हिंसा हुई ही नहीं। न जाने कितने बंदी हुए, कितनों ने लाठियां झेली, कितनों को फांसी दी गई, कितने बहनों पर अत्याचार हुआ, कोई हिसाब नहीं। इस तरह कत्ल किए गए हमारे जवान जैसे कोई घास काट रहा हो, इस तरह फांसी दी गई पेड़ों पर जैसे कोई फल लटक रहे हो। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, यही इरादा था हमारा। दुश्मन के सामने जाना यानी मौत को गले लगाना था। फिर भी लड़ते रहे हम। हथियार कम थे लेकिन हिम्मत की कमी नहीं थी। पूरा बदन गोलियों से छलनी हो गया, फिर भी लड़ते रहे हम। दुश्मन के जब 10 मारे तो एक गोली हमारे भी सीने को चीर कर निकल गई। हाथ से बंदूक गिर पड़ी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांस रुक रुक कर चलने लगी। कुछ गिनी चुनी चंद सांसें बाकी थी। लपलपाते हाथों से इस वतन को आखिरी सलाम किया और अपने दोस्तों के कांधों पर सर रखकर यही कहा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की
तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे इसी वतन को शक्तिशाली बनाने के लिए आज से 23 साल पहले 11 और 13 मई में हमने 5 अणुबम टेस्ट किए और दुनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। कल तक जो हिंदुस्तान अहिंसावादी और बुज़दिल समझा जाता था, वो हिंदुस्तान आज हाथ में शस्त्र लिए बगावत के रूप में खड़ा था। दुनिया ने बहुत डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन मरता क्या न करता। आज सारे हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ एक डर निकालना था, आत्मविश्वास जुटाना था, देश प्रेम जगाना था, और इसके लिए ऐसा कोई धमाका जरूरी था। आप लोग घर बनाते हो तो उसे एक दरवाजा भी बनाते हो और उसके लिए एक ताला भी खरीद लाते हो ताकि कोई चोर अंदर घुस ना आए, आपको लूट न ले, आपको बर्बाद न कर दे। देश का क्या करेंगे? देश को तो कोई दरवाजा नहीं लगा सकते, ताला नहीं लगा सकते, तो क्या ऐसे ही खुला छोड़ दे ताकि कोई भी आए हमें लूटे, हमें फिर से गुलाम बनाए? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए सरहद पर हमारे सिपाही खड़े रहते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सबसे दूर। ये सिपाही 24 घंटों हाथ में शस्त्र लिए, सर पर कफन बांधे अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वे वहां है, इसीलिए हम यहां है। इन सिपाहियों का दिल भी चाहता होगा अपने घर वालों से मिले, उनके साथ त्योहार मनाए, लेकिन अपने अरमानों को अपने ही सीने में दफन करके ये सिपाही 24 घंटों वहां अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मगर जब इन्हीं घर वालों का भेजा कोई संदेश उनके पास पहुंच जाता है तो उनका दिल पिघल उठता है। एक ही चिट्ठी को 100 बार पढ़ते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, तब उनका दिल भी गा उठता है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे
किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम ये दिल सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो नदी जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उससे मेरे प्यार का जाम दे, उससे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं आऊंगा फिर अपने गाँव में, किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा आओ निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 6 लाख वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके मिली है हमें आज़ादी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 6 लाख में से 1% यानी 6000 लोगों के भी नाम हमें मालूम नहीं है। तिलक, आगरकर, सावरकर, चाफेकर, रानी चन्नम्मा, संगोली रायण्णा, आप नाम गिनते जाइएगा 60 भी नहीं गिन पाएंगे। और हमें सिर्फ उन लोगों के नाम मालूम है जिनकी कुर्बानियां हमारे इतिहास में दर्ज है। लेकिन ऐसे 99% क्रांतिवीर हो गए जिनकी कुर्बानियां हम तक पहुंची ही नहीं। उनमें से एक थे सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी ने शायद यही सोचा होगा, ना तो मैं फांसी चढ़ सकता हूं, ना मैं लाठियां झेल सकता हूं, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मदद मैं जरूर कर सकता हूं। और शायद यही सोचकर उन्होंने अपना रहता हुआ घर और थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी वो सब बेच दी
जिसके कुल मिलाकर के 3,50,000 रुपए आए। और ये सारे के सारे 3,50,000 रुपए उन्होंने आज़ाद हिंद सेना को दान दे दिए, जिसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं सन 1942 की। सन 1942 के 3,50,000 रुपए यानी आज के 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। अपना सब कुछ देश पे कुर्बान करने के बाद ये खुद भिखारी बन गए। इसके 5 साल बाद हम आजाद हुए, लेकिन सुरेंद्र पाल जी की याद किसी को नहीं आई, ना ही किसी को उनका ख्याल आया। आजादी के 12 साल बाद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्पताल में सुरेंद्र पाल जी की लाश पाई गई। वहां वह लाश 3 दिन तक लावारिस पड़ी रही और 3 दिन के बाद इसी अस्पताल के 2 सिपाहियों ने स्ट्रेचर पर से उस लाश को उठाया और उसका अंतिम क्रियाक्रम किया। जबकि आजादी के बाद हमने देखा कि हमारा ही चुना हुआ कोई नेता भ्रष्टाचार करता है, इसी भ्रष्टाचार में वो करोड़ों रुपए कमाता है, इसी भ्रष्टाचार के आरोप में उसे जेल भेज दिया जाता है तो ये जमानत पे छूट के आता है, और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता का जुलूस निकाला जाता है जिसमें शामिल होते हैं लाखों हिंदुस्तानी। जिसने अपना सब कुछ देश पे कुर्बान किया और खुद भिखारी बन गया, ऐसे आदमी के अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए। और जिसने खुद करोड़ों कमाया और देश को भिखारी बनाया, ऐसे आदमी के जुलूस में शामिल हो रहे हैं लाखों हिंदुस्तानी। क्या हो गया हम लोगों को? हमें इस चित्र को बदलना है और इसके लिए आप सबसे विनती है कि आप सब लोग अभी मेरे साथ अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हम जो भी काम करेंगे अपने देश के हित के लिए करेंगे। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
दिया है जान देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे है वतन तेरे लिए। 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए। उसके बाद न जाने कितनी बार हम पर हमले हुए और हमारी इस आज़ादी को बचाने के लिए न जाने कितने सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज 75 साल पूरे होने को आए हैं हमारी इस आज़ादी को, लेकिन आज भी जब हमें उन क्रांतिवीरों की याद आती है, जब हमें उन सिपाहियों की याद आती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ इनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया जब अंत समय आया तो कह
जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। हर घर में रोटी बनती है और ये रोटी कैसे बनती है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान को भी ऐसे ही बनाया होगा जैसे रोटी बनती है। यानी भगवान ने जब सबसे पहली बार इंसान को बनाया तो ठीक तरह से भुना नहीं, ठीक तरह से फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा कच्चा रह गया, सफेदी जरा ज्यादा रह गई तो गोरे लोग बने, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लोग बने। फिर भगवान ने सोचा चलो और एक बार इंसान बनाते और जो गलती पहले हुई उस गलती को सुधारते हैं। अब भगवान ने दूसरी बार इंसान बनाया, अब की बार थोड़ा ज्यादा भुना, थोड़ा ज्यादा फ्राई किया तो जल गया, काले लोग बने, अफ्रीका के केनिया के लोग बने। फिर भगवान ने सोचा चलो और एक बार इंसान बनाते और अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब भगवान ने तीसरी बार इंसान बनाया, बहुत प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया, दिल लगा के बनाया, न जला हुआ न कच्चा, बिल्कुल ठीक ठीक इंसान बनाया, तब जाके हिंदुस्तानी बना। कितना अच्छा लगता है इसे सुनने में, मुझे कहने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राज की बात यह है कि दरअसल ऐसा हुआ नहीं है। भगवान ने तो सभी को बहुत प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन ये हमारी देशभक्ति है जो हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम दुनिया के अन्य देशों से अलग है, हटकर है, कुछ खास है। और यही देशभक्ति हमें ये कहने के लिए मजबूर करती है कि अगर ये दुनिया एक दुल्हन है तो इसके माथे की बिंदिया है ये मेरा इंडिया। देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन
तालियां होनी चाहिए। हाँ, एक डांस हो जाए हमारे साथ। हाँ, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, तालियां तो बजनी चाहिए ना। रहा है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना रहा है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हिंदुस्तानी। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना रुकी ना मिटी, देश तो निशान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना रुकी ना मिटी, देश तो निशान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हिंदुस्तानी। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल इस कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बहुत मुश्किल में गुजरे हैं। हम कलाकारों के भी मुश्किल में गुजरे। 2 साल में एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन इस मुश्किल के बाद खुशी की बात यह है कि जब प्रोग्राम शुरू हुए तो हमारे कर्नाटक से शुरू हुए। और इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए हमने सोचा है कि आपके लिए एक कन्नड़ गीत हम आज यहाँ पेश करने वाले हैं। जोरदार तालियां हो जाए। हे हे बाजो डाड़ा ढग ढगड़ा, डाड़ा ढग ढगड़ा, डाड़ा ढग ढगड़ा। हे हे तालियां नहीं सुनाई दे रही। हाँ, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹೇ ಬದುಕಿದ್ದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿಯಾದ ನಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದ್ದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿಯರೆ ಆರಿಸುವ ಬಂಡಿ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗದ ಗುಂಡೆ ಮಣಿಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗೆ ಹಾಡೋ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಗೋಣಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ನಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಲ್ಪ ಇದು ನಾಚಕ್ಕೆ ನಾಡ ಇದು ನಾನಂತರಂಗ ಇದು ಹೂವೆಂಪು ಬೆಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತನಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡ ಎದಾಗಿನ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಗುರಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ विधियारे आरिसुआ बंडी। मैं कहना चाहूँगा कि ये दो कलाकार जिन्होंने अभी ये कन्नड़ गीत पेश किया, इन दोनों को कन्नड़ भाषा का एक लफ्ज़ भी नहीं आता है, लेकिन आपके लिए ये बाय हार्ट करके ये गीत आपके लिए सुनाया है। जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। भाई और बहनों, आज हमारा हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली हुआ है कि हम पर हमला करने की बात हमारा दुश्मन सोच भी नहीं सकता। फिर ये गद्दारी पर उतर आता है, ये आतंकवादी हमला करता है, ये दहशतवादी हमला करता है, ये पीठ पीछे वार करता है। ऐसे कई आतंकवादी और दहशतवादी हमले हमने पहले से ही नाकामयाब किए हैं, लेकिन कुछ हमले हम रोक नहीं सके। जैसे दिल्ली में संसद पर हमला हुआ, जैसे मुंबई में होटल ताज पर हमला हुआ, त्रिपुरा में हुआ, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, जम्मू कश्मीर में होते रहते हैं। फिर हमारा दिल हमें ये कहने लगा कि हम इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे उसूल, हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। और ये दहशतवादी आतंकवादी हमले अमेरिका के ट्विन टावर पर भी हुए थे, इस्राइल के खिलाड़ियों पर भी हुए थे, लेकिन ना अमेरिका ने जंग छेड़ी, ना इस्राइल ने युद्ध का ऐलान किया। तो इन दोनों ने क्या किया? दोनों ने पूरा अभ्यास किया कि ये हमला किया किसने है, कौन कौन है इसके जिम्मेदार, किन किन लोगों ने इनकी मदद की है, पूरी लिस्ट बनाई और 2 साल के अंदर सारे के सारे लोगों को चुन चुन कर खत्म किया। अब हमने भी हमारी सोच बदल दी है। अब ये गिरफ्तारी, फिर कोर्ट कचहरी, फिर सजा, ये नहीं होगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और घुसकर मारेगा भी। जैसे उरी का जवाब हमने दिया सर्जिकल स्ट्राइक से, जैसे पुलवामा का जवाब हमने दिया एयर स्ट्राइक से, और ये जवाब हमने इसलिए दिया कि हम हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारा वतन आबाद रहे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो,
ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। भाई और बहनों, सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे जगाना बहुत मुश्किल है जो सोने का ढोंग रचा रहा हो। जागो हिंदुस्तानी में हमारी यही कोशिश रही है कि आपके दिलों में सोए हुए देश प्रेम को जगाए, और इसी देश प्रेम को जगाने के लिए हमने आपके सामने इतिहास के कुछ पल पेश किए, कुछ खुशी के, कुछ गम के, कुछ हिम्मत के, कुछ बलिदान के। आज भी जब उन क्रांति वीरों की याद आती है तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 अगस्त 1942 मुंबई के गवालिया टैंक पर महात्मा गांधी जी पूरे 2 घंटे और 10 मिनट तक भाषण देते रहे, और उसमें उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, करेंगे या मरेंगे, और एक चेतावनी दी अंग्रेज सरकार को, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और उसके दूसरे दिन 9 अगस्त जिसे हम क्रांति दिन के रूप में मनाते हैं, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा मोर्चा निकला। हिंदुस्तान के हर एक घर से हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक मर्द, हर एक बूढ़ा उस मोर्चे में शामिल हुआ था। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी 34 करोड़, और 34 करोड़ का मोर्चा निकला। इतने बड़े मोर्चे को देखकर अंग्रेज डर गए, लेकिन अंग्रेज जान चुके थे कि सबने अहिंसा की शपथ ली है, इसलिए उन्होंने इस मोर्चे को भी रोकना चाहा, लेकिन कोई नहीं रुका। मोर्चा आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। फिर लाठीचार्ज हुआ, न बच्चा देखा, न औरत, न बूढ़ा। लाठी बरसती रही। एक लाठी पीठ पर इतने जोर से बरसी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी दूसरी, तभी तीसरी लाठी बरसती रही। पीठ में से खून निकला, लेकिन हमारी जुबान पर एक ही नारा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खड़े हो जाइए सब लोग। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं पुण्यकुसुमिताद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरम् सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले हे सप्तकोटि पूजे लगा कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले हे सप्तकोटि पूजे लगा कर करवाले अब न कनुमयत बोले बहुमर धरणिं नमामि धरणिं रिपुदल वर्णिं मातरं वन्दे मातरम वन्दे मातरं 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 वन्दे नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं वर्णिं मातरं वन्दे मातरम् बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಾಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ.